हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक टेबल बताएंगे। टेबल के बाद कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में बताएंगे थोड़ा। तो इन दिस टेबल यू कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टरबाइन, लाइक दैट पेल्टन टरबाइन विद सिंगल जेट, पेल्टन टरबाइन विद मल्टी जेट, फ्रांसिस टरबाइन, कैपलन और प्रोपेलर टरबाइन. Then on the behalf of categorization for the specific speed in MKS as well as SI unit, for the serial number 1 we can see that for the Pelton wheel turbine with single jet, the speed in MKS lies in between 10 to 35, while in speed in SI it exists from 8.5 to 30 rpm, while the jet will be more than 1 or multi-jet for Pelton turbine. And the serial number 2 says the specific speed in this case will lie in between 35 to 60 rpm in MKS, while in SI 30 to 51 rpm exists. While for the reaction turbine, the specific speed in MKS stands from 60 to 300 rpm. For SI, for the same turbine, it stands from 51 to 225 rpm. While for the axial flow turbine, Kaplan turbine or propeller turbine, the MKS values differs for specific speed from 300 to 1000 rpm in MKS, while in SI system it exists for 255 to 860 rpm. Now these values are for the Kaplan turbine or propeller turbine. Actually, Kaplan turbine and propeller turbine both are the axial flow turbine, but in propeller turbine blades are adjustable, it is fixed, while in case of Kaplan turbine blades are non-fixed or adjustable. Okay, now we can see here the next topic, characteristic curve for hydraulic turbine. Actually, characteristic curves of a hydraulic turbine are the curves with the help of which exact behavior and performance of the turbine under different working conditions. एक्चुअली क्या होता है, टरबाइन में डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस में जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस होते हैं टरबाइंस के, उसकी जो इंटरप्रिटेशन होता है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ग्राफिकल इंटेंशंस जो समझाने होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझाया जाता है. ठीक, अब दिमाग में बात आ रही है कि भाई वर्किंग कंडीशंस के लिए तो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसकी वैल्यू वेरी करेगी, तो उस हिसाब से हम अलग अलग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेंगे. इन नेक्स्ट लाइन वी कैन सी देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स which are varied during test on a turbine. First one is speed, capital M. Second one is head, capital H. Head is the effective head or net head. And third one is discharge, and then power, then overall efficiency, then gate opening. Actually NHQP ओवरऑल एफिशिएंसी, गेट ओपनिंग, इसका एक प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस है ये. तो क्या होता है, ये 6 पैरामीटर्स जो हैं, इनमें कुछ 3 पैरामीटर्स हैं. इन दीज पैरामीटर्स देयर आर 3 पैरामीटर्स लाइक दैट स्पीड कैपिटल N, नेट हेड कैपिटल H, डिस्चार्ज Q. दीज आर द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स. दैट्स वाई इन दिस 3 parameters, one parameter is placed on the x-axis, and that value will be the independent variable, and rest of the 4 parameters will be placed on y-axis, and these values variation will be recorded with respect to x-axis experimentally, and for the different values a curve is plotted in between x-axis and y-axis, and this curve is known as performance characteristic curve. Okay, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है. And these parameters, 3 parameters, namely speed, head, discharge, are independent parameters. It means in one of these parameters will be plotted on the x-axis. इसका मतलब ये है कि NHQ में भी तो कोई भी वैल्यू वाई एक्स एक्सिस पर रखेंगे उसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, जबकि ये ज़रूर है कि इनकी वैल्यूज़
जैसे जैसे वैरी करेगी तो वाई एक्सिस वाली वैल्यू वैरी करेगी तो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स मिलाएंगे तो हमको अलग कर्व मिलेगा। ठीक, तो क्या होता है अगर इनमें से कोई एक वैल्यू कांस्टेंट की जाती है से एच एंड द वेरिएशन ऑफ अदर 4 पैरामीटर्स विद रेस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एन एच क्यू है, इसमें से अगर एक वैल्यू कांस्टेंट कर दी जाती है, मान लीजिए एच, तो अब इस 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अब हमारा केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, तो केवल 2 ही स्पीड और डिस्चार्ज बच गया। तो क्या होता है, स्पीड और डिस्चार्ज जो बच गया है से एन एंड क्यू आर प्लॉटेड एंड वेरियस कर्व्स आर ऑब्टेन। तो एन एंड क्यू इन दोनों को यहाँ रखते हैं हम एक्स एक्सिस पे, एक्स ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया है, तो जो हमको वाई एक्सिस पे रखे हुए डिपेंडेंट वेरिएबल्स का और एन एंड क्यू वेरिएशन से जो हमको कर्व मिलता है, तो वो कर्व जो है उसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व का फर्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दैट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व या कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कांस्टेंट हेड कर्व। बिफोर द डिस्कशन ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व वी विल नो द 3 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फर्स्ट वन इज मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स और कांस्टेंट हेड कर्व्स, second one is operating characteristic curve or constant speed curves, third one is muscle curves or constant efficiency curve. Here first point shows a main characteristic curve or constant head curve. It means constant will be constant in a constant head curves says that head will be constant in such type of curves, while for operating characteristic curves speed will be constant always, while for iso-efficiency curve efficiency will remain constant. Now we see some curves for main characteristic curves. Here first one, main characteristic curves or constant head curves. Here you can see the main characteristic curves in between unit discharge as well as unit speed. When the value of discharge shifts upward direction, then we see that the gate opening is also increases. When the gate opening is increasing, it means initially gate opening was 1/4, then 1/2, then 3/4, then full gate opening. And straight line is trying to shift in upward direction, and these 3 lines parallel to the x-axis we obtained for the various type of discharge, and this curve is the main characteristic curve which are plotted in between discharge as well as unit speed. But this curve is plotted for mainly पैटर्न टर्बाइन। तो पैटर्न टर्बाइन में क्या है, जब 1/4 गेट ओपनिंग है तो हमको एक डिस्चार्ज मिला, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ी तो हमको डिस्चार्ज जो मिला था वही डिस्चार्ज मिलते गया, मतलब डिस्चार्ज कांस्टेंट मिला। तो स्पीड बढ़ रहा है लेकिन डिस्चार्ज कांस्टेंट मिल रहा है, तो 1/4 गेट ओपनिंग पे जो लाइन मिला और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमको ये मिला। फिर क्या हुआ, जब 1/4 से गेट ओपनिंग हम बढ़ाया तो 1/2 जब किया, 1/2 गेट ओपनिंग की है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है अब कुछ ज़्यादा वैल्यू की डिस्चार्ज के साथ ये शिफ्ट हो गया ऊपर। फिर हमको दूसरा पैरेलल लाइन मिलने लगा एक्स एक्सिस के। फिर क्या हुआ, जब 3/4 गेट ओपनिंग हुआ तो ये ऊपर बढ़ा, फिर ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा वैल्यू की डिस्चार्ज की। लेकिन इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्चार्ज की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है। फुल गेट ओपनिंग में डिस्चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम मिली, लेकिन आरपीएम की वैल्यू के साथ बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू वेरी नहीं कर रही है। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन बिटवीन यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट स्पीड फॉर पैटर्न टर्बाइन, तो हमको इस तरीके का कुछ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनिट पावर वर्सेस यूनिट स्पीड। तो यूनिट पावर वर्सेस यूनिट स्पीड में ये भी पैटर्न टर्बाइन के लिए है।
यूनिट पावर यूनिट स्पीड में एक्चुअली हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे रखे हैं इनको, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एच कांस्टेंट हो गया है, ठीक, और एक का हम क्यू वाले का पहले ही देख सकते हैं, ठीक। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में हम इसको पी यू रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पीड, हेड और डिस्चार्ज होता है, उसमें से हम एक वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पर रख सकते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस पर नहीं रखें उसका वेरिएशन हम देख सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्हीं तीन में से किसी एक को वाई एक्स एक्सिस पर रखना है। अब यहाँ पे अगर पावर वर्सेस स्पीड का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व केस में हेड कांस्टेंट है, तो हमको सबसे पहले एक कर्व मिलता है, ये कर्व 1/4 गेट ओपनिंग का, फिर 1/2 गेट ओपनिंग का, फिर 1/2 गेट ओपनिंग, 3/4 गेट ओपनिंग का, फिर फुल गेट ओपनिंग का। तो इस तरीके से एरिया ऑफ द कर्व बढ़ते गया। इसका मतलब 0 पे जब स्पीड 0 है तो हमको कोई पावर नहीं मिल रहा है, 0। स्पीड बढ़ रहा है तो धीरे धीरे 1/4 गेट ओपनिंग पे पावर बढ़ रहा है, फिर स्पीड ज़्यादा बढ़ी तो फिर पावर घटना शुरू हो गया यहाँ पे। फिर क्या हुआ, 1/2 गेट ओपनिंग पे स्पीड जब 0 है तो कोई पावर नहीं मिला, लेकिन स्पीड जब बढ़ रही थी तो हमको जो है पावर की वैल्यू 1/4 गेट ओपनिंग से ज़्यादा मिलने लगी, एक पीक वैल्यू मिली इसमें यहाँ पे, जो कि 1/2 से कहीं जाती है, 1/4 से कहीं जाती है। और फिर स्पीड जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो फिर ये घटने लगा। फिर क्या हुआ, 3/4 गेट ओपनिंग में, 3/4 गेट ओपनिंग में ये वैल्यूज़ और ज़्यादा मिली पावर की। यहाँ पे जाके फिर पावर की वैल्यू जब एक मैक्सिमम वैल्यू पे यूनिट स्पीड की वैल्यू 0 हो गई, फिर पावर की मैक्सिमम वैल्यू की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमको जब फुल गेट ओपनिंग हुआ उस पर मिली, और फिर पावर की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, ठीक। ये तो जब फिर पावर वर्सेस यूनिट स्पीड का था। फिर अपन देखते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी वर्सेस यूनिट स्पीड। ओवरऑल एफिशिएंसी वर्सेस यूनिट स्पीड का कर्व उसी तरीके से फुल गेट ओपनिंग में सबसे ज़्यादा कर्व एरिया देगा और सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो किस केस में मिलेगा, हम फुल गेट ओपनिंग वाले केस में मिलेगा। जबकि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जब स्पीड 0 है तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, 0 है, ठीक। एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे जो है पावर का यूनिट स्पीड के हिसाब से भाई यहाँ पे हमको कर्व ही क्यों मिल रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है, एक हम फार्मूला जानते हैं ऑलरेडी यूनिट पावर का। यूनिट पावर का फार्मूला हम जानते हैं, ये जानते हैं, ठीक। तो यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है, इसीलिए हमको यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कर्व मिल रहा है वो क्यूबिक कर्व मिलता है, ठीक, क्यूबिक कर्व मिलता है। और ओवरऑल एफिशिएंसी भी जो कि रेशियो ऑफ द पावर होता है, तो हमको इस तरीके से हमको कर्व मिलता है। अब हम देखते हैं भाई फ्रांसिस टर्बाइन के लिए। तो इन केस ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन क्या होता है, जब 0.25 गेट ओपनिंग है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ कांस्टेंट है, सेम है, पैटर्न टर्बाइन के केस में होता था। जैसे जैसे गेट ओपनिंग ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ता है, ठीक। जैसे गेट ओपनिंग 25% है, 50% है, 75 है फुल गेट ओपनिंग में, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर डायरेक्शन में हमको बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक। लेकिन क्या होता है, जब 0 स्पीड रहती है तो डिस्चार्ज हमको जो मिलता है, और जब स्पीड बढ़ते जाती है तो डिस्चार्ज हमको मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर 0.25 पे, 0.5 पे, 0.75 पे फुल गेट ओपनिंग पे हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, और जो कि समय के साथ और स्पीड के साथ आरपीएम के साथ क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये यूनिट डिस्चार्ज वर्सेस यूनिट स्पीड का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जबकि हेड कांस्टेंट और किसके लिए, फ्रांसिस टर्बाइन के लिए, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड का देख सकते हैं फ्रांसिस टर्बाइन के लिए। सॉरी, ये किसके लिए था, कैप्लन टर्बाइन के लिए था, डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड का। उसी तरीके से हम देख सकते हैं फ्रांसिस टर्बाइन के लिए डिस्चार्ज वर्सेस स्पीड का। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कैप्लन टर्बाइन के केस में डिस्चार्ज मैक्सिमम हो रहा था, सॉरी हम बता दिए फ्रांसिस टर्बाइन था, फ्रांसिस टर्बाइन के लिए नहीं होता है। एक्चुअली डिस्चार्ज जब सबसे ज़्यादा मिलता है तो डिस्चार्ज हमको सबसे ज़्यादा उसी केस में मिलता है जब हेड मिनिमम हो। तो हेड यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन हेड सबसे कम जब होता है तो वो डिस्चार्ज ज़्यादा मिलता है। तो वो किस टाइप का टर्बाइन होता है, कैप्लन टर्बाइन होता है। कैप्लन टर्बाइन में क्या होता है,
डिस्चार्ज हमको ज़्यादा मिलता है। हेड कांस्टेंट है तो इस हिसाब से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इस तरीके से स्पीड के साथ डिस्चार्ज एक वैल्यू के साथ बढ़ रहा है। फिर फ्रांसिस टर्बाइन के केस में क्या होता है, स्पीड के साथ साथ वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, घटती हैं। से स्पीड बढ़ रहा है, डिस्चार्ज कम हो रहा है फ्रांसिस टर्बाइन के केस में। फुल गेट ओपनिंग में सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज मिलेगा, लेकिन स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी वैल्यू घटेगी। ठीक है, फिर देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर रिएक्शन टर्बाइंस और हाइड्रोलिक टर्बाइन। दिस वन इज as well as the gate opening increases, then the area of curve increases, the maximum power we get in the full gate opening condition. Here is a graph for overall efficiency versus speed for the Francis turbine. Now we will see the operating characteristic curve. ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड है हाइड्रोलिक टर्बाइन के लिए। इसमें क्या है, स्पीड जो है कांस्टेंट है, स्पीड के साथ साथ हेड कांस्टेंट होगा एफिशिएंसी के केस में। ठीक है, यहाँ पे अब हम कर्व ड्रा किए तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ये जो पोर्शन छूटा हुआ है, डिस्चार्ज का ये पोर्शन छूटा हुआ है, कुछ आगे बढ़ने के बाद जो है पावर और एफिशिएंसी का कर्व हम ड्रा किए हैं, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ऐसा क्यों है, ये छूटा क्यों है? एक्चुअली क्या होता है, इनिशियली और स्टार्टिंग में कुछ डिस्चार्ज होता है जो फ्रिक्शन को ओवरकम करता है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में डिस्चार्ज लगता है, वो डिस्चार्ज पे हमको कोई भी आउटपुट पावर और कोई भी एफिशिएंसी नहीं मिलता है। फिर जब एफिशिएंसी जब ये डिस्चार्ज का रूल ख़त्म हो जाता है तो फिर हमको जो है डिस्चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है फिर हमारी पावर की वैल्यू बढ़ती जाती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। फिर ये पीक पे पहुंचती है इस तरीके से यहाँ पे, फिर हमको ओवरऑल एफिशिएंसी में ये कर्व मिलता है। और क्या होता है, जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ता है फिर पीक पे जाता है ओवरऑल एफिशिएंसी। इस तरीके से वेरिएशन होता है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व का। ठीक है, ओके।